السلام علیکم، علاقائی خبرنامہ کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی۔ دعا ہے رب کریم آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پوری دنیا کو کورونا سمیت ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے، آمین۔ وفاقی حکومت کے اگلے سال کے بجٹ میں زرعی ملک پاکستان کے کسانوں کے لیے مراعات ہوں گی یا ہوگا صرف لفظوں کا گورکھ دھندا؟ نئے مالی سال کے بجٹ سے کسانوں کی کیا توقعات ہیں، جانتے ہیں چودھری عبدالرحیم شاہد کی رپورٹ میں۔ ہمارے ملک کی ترقی کا انحصار زراعت پر ہے، لیکن حکومت کی جانب سے کسان کو ریلیف دینے کے دعوے ہمیشہ دعووں تک ہی محدود ہوتے ہیں۔ ہر سال بجٹ کو عوام دوست بجٹ کا نام تو دیا جاتا ہے، مگر ہمیشہ کی طرح بجٹ عوام کی توقعات کے برعکس ہوتا ہے۔ حکومت کو چاہیے نئے بجٹ میں کسان کو نوازا جائے۔ پانی کو جو ہے وہ ٹائم تے دتا بنے، ہم فصل کو ایکسپورٹ کیتا بنے تے کسان کو سہولتاں دے سن تے کسان کوئی اگا چل سی، نہ سہولتاں ہو سن تے کیوں چل سی۔ کسان کو سہولیات دیتے ہوئے کھاد، بیج، ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کیا جائے۔ میں حکومت وقت سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس بجٹ میں کسانوں کو ریلیف دیا جائے، کھاد، بیج، سپرے اور ٹرانسپورٹ میں کسانوں کو ریلیف دیا جائے۔ نہ دھوپ کی فکر اور نہ ہی گرمی کا ڈر، یہ ہے ہمارے ملک کا کسان جو اپنی زمینوں پر کاشتکاری کرنے میں مصروف ہے۔ حکومت کو یہ آدھے جیڑی کنک جیڑی ہے بہت مہنگی ہوندی وینی ہے، کھاد بہت مہنگی ہے، غریب جڑے کہڑے پاسے ونے کسان بچت دا آسی، بچت دا جڑے بڑے بڑے کو مل سی، غریب چھوٹے عوام کو تو نہیں مل رہا۔ زراعت کی ترقی میں کسان اپنے مطالبات کے ساتھ آنے والے نئے بجٹ کے لیے پر امید ہے۔ حکومت نئے بجٹ میں اگر زراعت کے شعبہ کو ریلیف دیتی ہے تو کسان بھی خوشحال، پاکستان بھی خوشحال۔ کیمرامین عبدالرحمان واگا کے ساتھ چودھری عبدالرحیم شاہد، سچ نیوز ملتان۔ نئے مالی سال کے بجٹ سے جیکب آباد کے عوام نے امیدیں لگا لی ہیں۔ شہری کہتے ہیں امید ہے کہ تبدیلی سرکار عوام دوست بجٹ پیش کرے گی۔ دیکھیے دوست محمد لاشاری کی رپورٹ۔ وفاقی حکومت تیسرا بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے، جس سے عوام نے امیدیں لگا رکھی ہیں کہ اس سال حکومت عوام دوست بجٹ لائے گی۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ یہ بجٹ مزدوروں، کسانوں سمیت سرکاری ملازمین کے لیے فائدہ مند بجٹ ثابت ہوگا۔ یہ عوام دشمن بجٹ ہے، یہ عوام کو 22 کروڑ پاکستان کے عوام کو کچھ بھی ریلیف نہیں مل رہا ہے۔ یہ تیسری آپ لوگوں نے بجٹ پیش کیے، نہ ہاری کے لیے کچھ آپ لوگوں نے رکھا ہے، نہ مزدور کے لیے کوئی پیکج رکھا ہے۔ جیسا کہ بجٹ کل کو پیش ہونے جا رہا ہے تو ہمیں نہیں لگ رہا ہے، کیونکہ ہمیں پہلے بھی کسانوں کو کوئی ریلیف نہیں دیا اس گورنمنٹ نے۔ شہریوں کا مزید کہنا تھا کہ دیکھنا یہ ہے کہ اس سال پیش کیے جانے والے بجٹ سے عوام کو کتنا ریلیف دیا جاتا ہے، یا ہر سال کی طرح اس سال بھی یہ بجٹ عوام دشمن ثابت ہوگا۔ عوام نے حکومت سے امیدیں لگا رکھی ہیں کہ پیش کیا جانے والا بجٹ جو ہے عوام دوست بجٹ ہوگا۔ کیمرہ مین نیا سمرو کے ساتھ دوست اللہ شریف، سچ نیوز جیکب آباد۔ مالی سال 2021 اور 22 کا بجٹ آنے سے قبل ہی عوام نے امیدیں چھوڑ دی ہیں۔ شہری کہتے ہیں ہر حکومت بجٹ سے قبل بلند و بانگ دعوے تو کرتی ہے، مگر حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ بجٹ کے ساتھ غریبوں کا تو کوئی لین دین نہیں ہے، انہوں نے تو صرف مہنگائی کے دور میں پسنا ہی پسنا ہے، اور باقی دیکھیں اس سال بھی اللہ تعالیٰ خیر کرے ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا نہیں۔ غریب ہے، غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ 18 تاریخ کو بجٹ پیش ہوگا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس بجٹ سے غریب طبقے کا کوئی تعلق ہو، کیونکہ غریب کو بجٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، اس سے بس اس چیز کا وہ ہوتا ہے کہ اس کو چیزیں سستی مل جائیں۔ اس میں غریب عوام کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ غریب عوام کو یہ فائدہ، وہ کہتا ہے کون سی چیزیں مہنگی ہیں وہ سستی کی جائیں۔ امیر کا بجٹ پیش ہوتا ہے۔ پچھلی بار بھی آدھا بجٹ پیش ہوا تھا، اس کے بعد پھر دوبارہ بجٹ پیش ہوا تھا۔ یہ تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ حکومت کر کیا رہی ہے۔ کمالیہ میں مہنگائی کا طوفان نہ تھم سکا، قصابوں نے سرکاری نرخنامے کو مسترد کر دیا۔ بیف 500 سے 550 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا۔ رپورٹ کریں گے اسد راجپور۔ کمالیہ میں قصابوں نے سرکاری نرخ نامے کو مسترد کر دیا۔ بیف کی قیمت میں خود ساختہ اضافہ کر دیا۔ بیف کا سرکاری نرخ نامے کے مطابق 400 روپے فی کلو ریٹ مقرر ہے، لیکن اوپن مارکیٹ میں بیف 500 روپے سے 550 روپے کلو میں فروخت ہونے لگا، جس کے باعث عام آدمی کے لیے گوشت خریدنا خاصا مشکل ہو گیا ہے۔ بڑھتی ہوئی قیمتوں پر شہریوں کا سچ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا، مہنگائی کی اتنی عادت گزر گئی ہے کہ 350 روپے کلو گوشت آج 500 روپے کلو مل رہا ہے۔ گورنمنٹ کو کچھ خیال کرنا چاہیے، غریبوں کی طرف دیکھنا چاہیے۔ گوشت والے سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں پیچھے سے مہنگا مل رہا ہے، ہم آپ کو سستا کیسے دیں؟ سر جانور مہنگا ہے، جو جانور مہنگا سستا گوشت کیویں ویچیے؟ جو جانور پچھو سستا ہوئے تو گوشت سستا ہوئے 600 روپے کلو عام گوشت پہ رہے، اسی 500 روپے بیچ رہے ہیں۔
शहरियों का कहना है कि एक माह पहले बीफ का रेट 350 रुपए किलो था। बेशतर कसाबों ने रेट लिस्ट छुपा रखी है। पहले चिकन की कीमतें आसमान पर थीं, जो कि बड़ी मुश्किल से कम हुई हैं। अब बीफ की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जबकि कसाबों का कहना है कि मंडी में जानवर महंगे दामों मिल रहे हैं। महंगे दामों जानवर खरीदकर सस्ता गोश्त कैसे बेचें? शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह से बीफ की बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, साज न्यूज टीवी, कमालिया। पेशावर में मुर्गी के पर कट गए। ऊंची उड़ान के बाद मुर्गी के गोश्त की कीमतें कम होने लगी। पेशावर में चिकन की कीमत में मुसलसल इजाफे के बाद अचानक कमी कर दी गई। शहर में चिकन फी किलो 186 रुपए तक हो गया। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से चिकन की अफगानिस्तान बरामदात पर पाबंदी के बाद कीमतों में नुमायां कमी आई है। रमजान में 321 रुपए फी किलो फरोख्त होने वाला चिकन 200 से भी कम में फरोख्त होने लगा है। तिब्बी महाज से अच्छी खबर आ गई। कोरोना केसेस में मुसलसल कमी होने लगी। 24 घंटों के दौरान 1303 नए केसेस सामने आए हैं। एनसीओसी के मुताबिक मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 3.1 रही। वायरस एक दिन में मजीद 76 जिंदगियां निकल गया। हुकूमत की हिकमत अमली काम कर गई। मुल्क में कोरोना की शिद्दत में मुसलसल कमी आने लगी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर अदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1303 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पंजाब में 3,43,252, सिंध में 3,25,783, खैबर पख्तूनख्वा में 1,35,162, बलोचिस्तान में 26,052, गिलगित बल्तिस्तान में 5,674, इस्लामाबाद में 81,933, जबकि आजाद कश्मीर में 19,630 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,37,05,490 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 41,824 नए टेस्ट किए गए। अब तक 8,71,669 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 76 अफराद जाँ बाक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 21,529 हो गई है। पंजाब में 10,436, सिंध में 5,183, खैबर पख्तूनख्वा में 4,185, इस्लामाबाद में 768, बलूचिस्तान में 291, गिलगित बल्तिस्तान में 107 और आजाद कश्मीर में 559 मरीज जान से हाथ धो बैठे हैं। आलमी वबा से निजात के लिए मुल्तान और गिरदोनवा में वैक्सीनेशन के अमल को तेज कर दिया गया। जिला में 22 वैक्सीनेशन सेंटर्स फाल हैं, जबकि शहरियों की सहूलत के लिए मोबाइल वैक्सीनेशन का भी आगाज कर दिया गया। अब तक 2.5 लाख के लगभग अफराद की वैक्सीनेशन की जा चुकी है। अहमद काशिफ की रिपोर्ट। पाकिस्तान को आलमी वबा से निजात दिलाने के लिए कोशिशें तेज कर दी गई हैं। मुल्तान में वैक्सीनेशन के अमल को गियर अप करने के लिए प्लान पर अमल दरामद का आगाज कर दिया गया है। जिला मुल्तान में 22 कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स फाल हैं, जबकि निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के हाल में कायम सेंटर से शहरियों को 24 घंटे कोरोना वैक्सीनेशन की सहूलत मुयसर है। बड़े सरकारी और निजी इदारों के दफातर में कोरोना काउंटर्स कायम करके वैक्सीनेशन का अमल शुरू कर दिया गया है। शहरियों को घरों की दहलीज पर वैक्सीनेशन की सहूलत फराहम करने के लिए मोबाइल सर्विस भी शुरू कर दी गई है, जबकि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हेड ऑफिस में भी कोरोना वैक्सीनेशन काउंटर कायम कर दिया गया है। कंपनी के 2,400 से जायद वर्कर्स और उनकी फैमिलीज के लिए वैक्सीनेशन शुरू की जाएगी। वाज़ेह रहे कि जिला मुल्तान में अब तक 2,41,619 अफराद की वैक्सीनेशन की जा चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जिला में 7,206 अफराद की वैक्सीनेशन की गई। डिस्ट्रिक्ट जेल के 600 स्टाफ और उनकी फैमिलीज के लिए भी वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। मुल्तान एयरपोर्ट पर तैनात सिविल एविएशन, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, FIA, कस्टम, PIA और स्टाफ के दीगर 740 अफराद की भी वैक्सीनेशन मुकम्मल कर ली गई है। सरकारी स्कूलों के टीचर्स, कॉलेज लेक्चरर्स और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर और दीगर स्टाफ की वैक्सीनेशन का हदफ भी हासिल कर लिया गया है। कोरोना वैक्सीनेशन न कराने पर हुकूमत की तरफ से समाजी पाबंदियों का इंदिए के बाद सेंटर्स पर रश बढ़ गया है। अहमद काशिफ, सच TV, मुल्तान। आरिफ वाला शहर और गिरदोनवा में 9 से 10 घंटे बिजली गायब रहना मामूल बन गया। बिजली बंदिश के बायस निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गए। नजीर अहमद खरल की रिपोर्ट। पंजाब के पसमानदा इलाके तहसील आरिफ वाले में जहां एक तरफ कबूला, बेली दिलावर, बियाड़ा लखों का, तनाजा मीरू का, हस्सू हसन का, मरले और आसपास के कई देहातों में बिजली की गैर इलानिया लोड शेडिंग ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। वहीं दूसरी जानिब बिजली के बेजा बिलों में इजाफा आवाम की 14 तबक रोशन कर दिए। लोड शेडिंग और बिलों में पिसी हुई आवाम का कहना है कि तब्दीली सरकार ने आवाम के सामने 22 साल जिस बात का रोना रोया, आज वही कुछ खुद कर रही है। फसलां तबाह हो रही ने जी, 10 घंटा डेढ़ आंदी है, फिर आंदी नहीं, ते फसलां बहुत नुकसान हो रही ने जी। महंगाई बड़ी है भाई, हुण बिजली नहीं आंदी पई, ते खुदा दे वास्ते बिजली गल्लो, बिजली तू महरूम ना करो सानू,
ਅਗਲੀ हुकूमतां दे विच बिजली चलती रही है, इस हुकूमत दे विच क्यों नहीं बिजली आती भाई। आरिफ वाला सिटी के अलावा दही इलाकों में भी 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। बार बार ट्रिपिंग से लोगों का घरेलू नुकसान भी हो रहा है। हुकूमत वक्त से अवाम ने मुतालबा किया कि गैर इलानिया और जालमाना लोड शेडिंग से और बेजा बिलों में इजाफे को फौरी तौर पर कंट्रोल न किया तो लोग सड़कों पर निकलने पर मजबूर हो जाएंगे। आरिफ वाला शहर के अलावा देहाती इलाकों में भी 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। बार बार ट्रिपिंग से घरेलू सार्फिन का नुकसान भी काफी हो रहा है। कैमरा टीम के साथ नजीर अहमद खरल, सच टीवी, आरिफ वाला। खैरपुर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना महाल कर दिया। बिजली की तवील बंदिश के बायस मामूलात जिंदगी शदीद मुतासर हो रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे हामिद अली। खैरपुर और गेदनवा में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बिजली की लोड शेडिंग की वजह से गरीब आवाम का कारोबार ठप होकर रह गया है। एक तरफ शदीद गर्मी, दूसरी तरफ बिजली की गैरलानिया लोड शेडिंग ने खैरपुर के शहरियों की जिंदगी को अजीरन बना दिया है। बिजली और गर्मी के सताए हुए शहरियों का कहना है कि ये हम हुकूमत को बताना चाहते हैं, जो तब्दीली सरकार अपने आप को कहलाती है, ये उसकी तब्दीली है। 4-4 घंटे लोड शेडिंग है। शहर है सिंध का, खैरपुर मेरा डिस्ट्रिक्ट है, उस सिटी में 4-4 घंटे लोड शेडिंग है। घंटे यहाँ पे लाइट नहीं है। खैरपुर में हम गर्मी में जलील हो गए। हुकूमत को चाहिए कि हमारे पास इधर लाइट दें, और हमें 52-50 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी है। हम गर्मी में बहुत तंग हो गए, और हुकूमत को हम अपील करते हैं कि हमारे पास लाइट की लोड शेडिंग सही करें। बहुत लाइट की कमी है, और यहाँ पे लाइट का कोई अता पता नहीं है। घंटा आती है, 2 घंटे चले जाती है, 4 घंटे। इतनी शदीद गर्मी में बच्चे छोटे बड़े कहाँ जाएंगे। इतनी देखें आप, 12 सेंटीग्रेड कितना चल रहा है इधर गर्मी का। तमाम बहुत खराब हालत है यहाँ पे। छोटे छोटे बच्चे हैं, हमने गर्मी में बहुत परेशान हो गए हैं। हमको लोड शेडिंग वालों ने बहुत हमको तकलीफ दी है। हम हुकूमत से अपील करते हैं, हमारे छोटे बच्चे जो है मर रहे हैं, हम कहाँ जाएं। इतनी धूप है, इतनी गर्मी है, इधर 43 और 44 सेंटीग्रेड है खैरपुर मीरस में। हम शहरियों ने वफाकी सरकार से बिजली की लोड शेडिंग को खत्म करने का मुतालबा किया है, ताकि इस शदीद गर्मी में सुकून की जिंदगी गुजार सके। कैमरा टीम के साथ अलीवर गोपांग, सच न्यूज खैर। मुजफ्फरगढ़ में भी 8 से 10 घंटे बिजली गायब रहना मामूल बन गया। लोड शेडिंग के बायस कारोबारी तबका शदीद परेशान है। देखिए सबीउल्लाह की रिपोर्ट। मुजफ्फरगढ़ और गिरदोनवा में गैर इलानिया लोड शेडिंग के अजाब ने आवाम का जीना दो भर कर दिया। 8 से 10 घंटे की गैर इलानिया लोड शेडिंग मामूल बन गई। शहरी अजियतनाक लोड शेडिंग से शदीद परेशान है। बिजली न होने की वजह से कारोबारी जिंदगी मफलूज होकर रह गई है, जिसकी वजह से ताजिर बिरादरी शदीद परेशान है। हुकूमत के बिजली पूरी करने के वादे खोखले साबित हुए। 12-12 घंटे लाइट नहीं बिल्कुल भी, और बिल इतने आ रहे हैं, कहाँ से गरीब आवाम बिल भरे हैं। लोग खुदकुशियाँ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। मैं हुकूमत से ये कहना चाहता हूँ, मेहरबानी करके आवाम को लाइट पूरी दी जाए, और बिल के अंदर बिल्कुल ही कमी की जाए। और मैं यही अर्ज करूँगा, बाजार के हालात ऐसे पड़े हैं, जिस तरह लॉकडाउन लगे हैं, लोग कर्जई हो चुके हैं। ठीक है ना। आप बिजली की 8 से 10 घंटे बगैर ऐलान के जो है लोड शेडिंग है। ठीक है, गर्मी इतनी बढ़ रही है, कोई हद नहीं। बिजली के बिल हैं तो वो अल्लाह माफी दे, जो है वो आ रहे हैं। बिजली बिल देने के बावजूद भी बिजली नहीं है। ठीक है, उसके अलावा जो है सब बच्चे गर्मी की वजह से बेहोश हो रहे हैं। सख्त गर्मी बढ़ रही है, जो है गवर्नमेंट को जो है कुछ भी नहीं देख रही है। जो है कम से कम छोटी छोटी चीजों का तो हमारा ख्याल रखो। शहरियों ने वजीर आजम इमरान खान से मुतालबा किया है कि इस अजाब शिकन लोड शेडिंग को खत्म कराया जाए। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज, मुजफ्फरगढ़। शेखुपुरा में भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। घंटों घंटों बिजली गायब रहना मामूल बन चुका, जिससे शहरी परेशान हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद मुश्ताक। शेखुपुरा और इसके गिरदोनवा में गैर एलानिया और तवील दुरानिया बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। गर्मी की शिद्दत के साथ लेस्को वापटा की तरफ से बगैर शेड्यूल 3-3, 4-4 घंटे की मुसलसल लोड शेडिंग से शेखुपुरा के शहरी बिलबला उठे। कारोबारी हल्के भी परेशानी से दुचार हैं। शहरियों का कहना है कि कारोबार चलना, गरीब की रोजी रोटी चलनी है, लाइट ही नहीं आनी तो रोजी रोटी की तो चलनी है। सुबह दे आके दुकान खोली है, सुबह की लाइट बंद है, 3-4 बजे तो पहले लाइट नहीं आती। कल भी सारा दिन इस तरह रहा काम, ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਸਟਮਰ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਲਾਈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੂ। ਗਾਹਕ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਫਤਾ ਹੀ 2 ਦਿਨ ਬੰਦ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ 5 ਦਿਨ ਖੋਲਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗਾਹਕ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਲੰਬਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਲੰਬਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤੇ ਨਾ ਗ੍ਰਾਈਂਡਰ ਚੱਲਣੀ, ਨਾ ਹੀਟਰ ਚੱਲਣੇ। ਬੱਤੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਤੋਂ ਬੱਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਿਸੇ ਹਾਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੱਤੀ ਕੋਈ नहीं ਹੁੰਦੀ। गुज़श्ता 3 रोज से गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही लेस्को वापटा ने शहर और इसके गिरदोनवा में कई घंटे की मुसलसल गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू कर रखा है। मोहम्मद मुश्ताक, सच न्यूज, शेखुपुरा।
सूरज आग बरसाने लगा। गर्मी और लोड शेडिंग के बायस तदरीसी अमल मुतासर हो गया। तलबा गर्मी से निढाल, नक्सीर बहने के वाकयात, बच्चे मुख्तलिफ किस्म की मूजी अमराज का शिकार होने लगे हैं। लिया में दर्जे हरारत 49 डिग्री तक जा पहुंचा। गर्मी की शिद्दत में इजाफे से स्कूल जाने वाले बच्चे शदीद परेशान हैं। वालिदैन ने छुट्टियों का मुतालबा कर दिया। ज़हूर दुरानी की रिपोर्ट। हालिया दिनों में गर्मी की शदीद लहर ने लिया को लपेट में ले रखा है। आग बरसाता सूरज और तपिश उगलती जमीन ने लिया का पारा 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा दिया। दूसरी तरफ जहां लिया भर में गर्मी की शदीद लहर है, तो वहीं लिया की तहसील चौबारा के रेगजारू में स्कूलों में जाने वाले बच्चे इंतहाई परेशान दिखाई देते हैं। बड़ों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त दर्जा हरारत तो गर्मी, कई किलोमीटर रेतले टीलों पर सफर करके असूल तालीम के लिए आने वाले बच्चों की सेहत पर बुरे असरात मुरतब करना शुरू कर दिए। इजलात के मुताबिक गर्मी के सबब कई स्कूलों में बच्चे बेहोश हो गए। कोरोना और लॉकडाउन के बाद स्कूल बंद किए जाने के दौरान तालीमी हद को पूरा करने के लिए हुकूमत की जानिब से गर्मियों की छुट्टियों में कमी तो कर दी गई, मगर गर्मी की शदीद लहर में स्कूलों को खुला रखना और साथ ही बच्चों की स्कूलों में हाजिरी को यकीनी बनाना बच्चों की जिंदगियों से खिलवाड़ से कम नहीं। हुकूमत को चाहिए महकमा मौसमियात से मुशावरत के साथ शदीद गर्मी के लहर के दिनों तालीमी इदारों को बंद करे, ताकि तलबा और तालिबात की सेहत का ख्याल रखते हुए उनकी जिंदगियों को महफूज बनाया जा सके। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, साथ न्यूज लिया। लोड शेडिंग में इजाफे से कश्मीर के बर्फखानों में पैदावार कम हो गई। शहरी ठंडे पानी को भी तरसने लगे हैं। रिपोर्ट करेंगे अख्तियार सोलंगी। कश्मीर में गर्मी की शिदत में इजाफा हुआ तो बर्फ की मांग भी बढ़ गई। तवील लोड शेडिंग और गर्मी की शिदत में इजाफे की वजह से कारखानों में बर्फ तैयार नहीं हो रही, जिससे शहरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहर में बर्फ का बिलाट 400 से 650 रुपए में फरोख्त हो रहा है। शहरों का कहना है कि यहाँ पर बर्फ भी नायाब हो गई है। कश्मीर में तो कहीं भी देरा मोड़, कश्मीर गुडू में बर्फ का नाम भी नहीं है। ये हुकूमत हमारी बिजली का ये निजाम है, बर्फ मिल नहीं रही। पहले 20 रुपए की लेते थे, ठंडा पानी पीते थे। बर्फ लेने आया था, 3 घंटे से घूम रहा है यहाँ वहाँ शहर में, दर पदर है, ना बर्फ मिल रहा है ना कोई चीज मिल रहा है। भाई जलील क्या बहुत, सुबह शाम बर्फ नहीं मिलता है, पट्टे देखो खाली पड़े। भाई देखे, एक तो बिजली का निजाम ऐसा धर्म भरम हो चुका है कि हमारे फ्रिजेस नहीं चल रहे बिल्कुल, और जब आते हैं फटों पे बर्फ लेने के लिए तो बर्फ मिलती नहीं है। वैसे तो 10-20 रुपए में जो है बच्चों को पानी ठंडा पिला सकते थे, लेकिन अब तो ऐसी सूरत हाल है कि फटे आप देख सकते हैं खाली पड़े हुए, बर्फ नहीं मिल रही। हुकूमत को चाहिए कि लोड शेडिंग का दौरान कम किया जाए और बर्फ के रेट को भी कम किया जाए, ताकि इस सख्त गर्मी में ठंडा पानी गरीब आवाम को मुयसर हो सके। कैमरामैन निजाम लाशारी के साथ अख्तियार सोलंगी, सच न्यूज कश्मीर। मर्दान के इलाके तख्तबाई के मकीन गर्मी के मौसम में पानी की बूंद बूंद को तरस गए। अहले इलाका पानी भी पैसों के एवज देने पर मजबूर हैं। मंजूर हुसैन की रिपोर्ट। मर्दान की तहसील तख्तबाई के गांव मजदूराबाद के बासी पीने के साफ पानी से महरूम है। मजदूराबाद के बासी पीने के एक एक बूंद को तरस गए। लोग 1000 रुपए चंदा जमा करके पानी के टैंकर भरकर लाने पर मजबूर हो गए। इलाका मकीनों के मुताबिक सियासतदान वोट मांगने के लिए आ जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद किए गए वादे वफा नहीं करते। कितना इलाके में तकरीबन 5-10 साल हुए, पानी तो है नहीं। मेहरबानी कर, सारा भी कुछ गुंजाइश है। वफाकी मिनिस्टर अली मोहम्मद खान आए भी है, ये हाल उन्होंने देखा भी है, और इलेक्शन से पहले उन्होंने यहाँ पर इन लोगों से वादा किया था कि मैं जब हमारी हुकूमत आएगी तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पानी का मसला जो है ये हल करूँगा। ये मसला हल नहीं हो, क्योंकि गर्मी है, अभी जमीन में भी पानी नहीं है, बारिश नहीं है। अगर इसके बाद भी मसला हल नहीं हुआ तो इंशाल्लाह हम रोड पे जाएगा, रोड बंद करेगा। इलाका मकीनों ने हुकूमत से साफ पानी मुहैया करने के लिए फौरी नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा है कि अगर पानी के इस मसले को जल्द अज जल्द हल न किया गया तो हम अहम शाहराहों को बंद करके सरापा एहतजाज हो जाएंगे। मंजूर हुसैन, सच टीवी, मर्दान। दर्जा हरारत में इजाफा होते ही गर्मी से छुटकारा पाने के लिए तोबा टेक सिंह के शहरियों ने ट्यूबवेल्स का रुख कर लिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं सुल्तान सिद्धू। तोबा टेक सिंह और गिरदोनवा का एरिया इस वक्त शदीद गर्मी की लपेट में है। शहर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी 8 घंटे से तजावज कर गया है। शहर में दर्जा हरारत 45 डिग्री तक पहुंचा तो मनचले नौजवानों ने ट्यूबवेल का रुख कर लिया। शदीद गर्मी और हबस से सताए नौजवान ट्यूबवेल पर नहाते हुए नजर आए। नौजवानों का कहना है कि गर्मी से बचने के लिए दोस्तों के साथ पिकनिक पार्टी मना रहे हैं। तोबा टेक सिंह का आज टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और हबस है, लोड शेडिंग भी हो रही है। दोस्तों ने हमने प्लान बनाया था, सब दोस्त इधर आए हैं ट्यूबवेल पे और खाना भी खाया हमने, मैंगो पार्टी की है और खूब एंजॉय किया है। सबने नहाए हैं और बहुत मजा है। गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा है। दोस्तों के साथ हमने मिलकर प्लान बनाया कि ट्यूबवेल पर नहाने के लिए जाएं। हम यहाँ दोस्त सब मिलकर आए, नहाने के लिए आए हैं और खाना शाना लेके आए हैं। मैंगो पार्टी की, खूब हल्ला गुल्ला किया और एंजॉय किया।
गर्मी की शिद्दत कंट्रोल इसे नहाने से खत्म हो गई है। नौजवानों ने दोस्तों से मिलकर खूब हल्ला गुल्ला किया और ट्यूबवेल के ठंडे ठार पानी से नहाकर गर्मी को भगाया। शहर में शदीद गर्मी के बायस सड़कें वीरान हैं, ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी ना होने के बराबर है, जबकि लोड शेडिंग के बायस शहरी शदीद अजियत का शिकार है। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक सिंह। हाफिजाबाद में अवामी मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। जफर इकबाल की रिपोर्ट। डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद की हिदायत पर खुली कचहरी का इनकाद किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद मैडम नौरोज साहिबा ने वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर जनरल बस स्टैंड के करीब दही मरकज माल सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। सेंटर बनाने का मकसद शहरियों को अपनी जायदाद की मुंतकिली और इंतकाल में आने वाली मुश्किलात को कम किया जाए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद मैडम नौरोज साहिबा ने बताया 11 वैक्सीनेशन सेंटर इस वक्त हैदराबाद में काम कर रहे हैं। उसके अलावा 6 मोबाइल टीम लगी, एक मोबाइल टीम बाहर खड़ी है। ये सब आपके लिए आई है यहाँ कि जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं उन सबकी वैक्सीनेशन इस वक्त हो रही है। हुकूमत की जानब से दी जाने वाली सहूलतों से फायदा उठाते हुए मोबाइल वैक्सीन सेंटर से अपने और अपने अहल खाना को फ्री वैक्सीन करवाएं, ताकि पूरी दुनिया की तरह जिला हाफिजाबाद को भी कोरोना जैसी मुल्क मरज से महफूज बनाया जा सके। डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद मैडम नौरोज साहिबा ने कहा था खुली के शहरी का देही मरकज माल पे स्पेशली मैंने इसको सेलेक्ट की लोकेशन। उसकी वजह ये थी कि देही मरकज माल हम लोगों को बताना चाहते हैं कि कितनी बड़ी फैसिलिटी है उनके लिए कि कानूनी लेवल पे आपके फरदात भी इशू हो रही हैं और आपके इंतकालात भी हो। पता चले एक तो ये सर्विस इनको मिल रही है, दूसरी बात ये कि कानूनी लेवल पे सारे ऑफिसर्स जिस जिले के हैं वो मौजूद थे, ये बताने के लिए कि जी हम मौजूद हैं आपकी खिदमत के लिए। आपने मसाइल हमारे पास लेके आए और हम उनको समझाना चाहते हैं और इंशाल्लाह जितने भी मसाइल आ जाए। बस स्टैंड के करीब दही मरकज माल सेंटर कैंप कर दिया गया है, ताकि आवाम को तमाम तर सहूलतें इनकी दलील पर मिल सके। कैमरामैन वारिस अली खां के साथ सवार जफर इकबाल, सच न्यूज, हाफिजाबाद। मुजफ्फरगढ़ की तेलीरी नहर में बासर अफराद ने गैर कानूनी खुदाई शुरू कर दी है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अजमल। मुजफ्फरगढ़ में तलीरी नहर से निकलने वाले गोपांग माइनर में महकमा अनहार की इजाजत और नोटिस में लाए बगैर बाअसर अफराद ने क्रेन लगाकर गैर कानूनी खुदाई शुरू कर दी और माइनर की चौड़ाई और बेड में 2-2 फुट का गैर कानूनी इजाफा कर लिया और टेल पर मौजूद क्रेस्ट भी तोड़ दिए। क्रेन पानी छोड़ी खड़न गोपांग माइनर से न कोई अमला न कोई जई में अपनी मर्जी ना शुरू के थी कि नाला जेड़ा साडा गवर्नमेंट दा मंजूर शुदा उनको हद तो ज्यादा इजाजत करना, लिहाजा साढ़े मोगियां को पानी जल्द नहर झिकी होनी तो पानी ज्यादा गवे ने असा ही पानी तो महरूम रहने। हुण क्रेन वाले आके बहुत झिका नाला खटे ने पे जिन्हें तो बहुत परेशानी थी। माइनर के इब्तदाई मोगों के मुतासरा किसानों ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कहा कि बाअसर अफराद की जानिब से की जाने वाली माइनर की तोड़फोड़ और गैर कानूनी खुदाई से उनकी 4 मोगों की हजारों एकड़ अराजी और आम के बागात बंजर होने का खदशा है। किसानों ने गुपांग माइनर की टेल पर क्रेस्ट दोबारा तामीर करके क्रेन के जरिए की जाने वाली माइनर की गैर कानूनी खुदाई रुकवा कर महकमा अनहार के नक्शे के मुताबिक इस माइनर को दोबारा बहाल करके पानी की मुनसिफाना तकसीम का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजमल, सच न्यूज, मुजफ्फरगढ़। भोंग के नवाई इलाका मौजा बख्शाबाद के काश्तकार नहरी पानी की बंदिश के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। मोहम्मद अली बलोच की रिपोर्ट। भोंग के नवाई इलाके बख्शाबाद के काश्तकार नहरी पानी न मिलने की वजह से सरपा एहतजाज बन गए। मजीद उनका कहना था 2 महीने से नहर चल रही है, हमारे बिल्कुल जितने रकबाजात हैं वो बंजर पड़े हैं, बिल्कुल पानी का एक कतरा भी आज तक नसीब नहीं हुआ। 2 महीने से हम इधर मुसलसल चक्कर लगा रहे हैं, आज नहीं कल, आज नहीं कल। ये कब्जा ग्रुप माफिया लोगों से रिश्वत और सिफारिश की बना पर हमें ये धक्के दे रहा है, हमारी कोई जरा बर भी बात नहीं सुन रहा। हम हुकाम बाला से गुजारिश करते हैं कि हम गरीबों के साथ मदद करें और इस नालायक SDO साहब से एक्शन लें ताकि हम अपनी जमीन वगैरह आबाद बर वक्त कर सकें। तो सर 19 एकड़ जमीन गैर आबाद असा दूजा महीना फेरे करेंदे पियो, असा को पेशिया नहीं दा पे, असा कख नहीं सुनदा पिया। अगते जेडे 4 एकड़ जमीन 12 घंटे पानी पींदे पे, असारा जमीन गैर आबाद है। असारा मेहरबानी कर सारे अफसर अपील सुनन और ए अफसर साहब कोई खुदा ईमान देवे असारा सुने तो 2 महीने थी पेश आ रहे थे।
उनका कहना था कि 2 माह गुजर चुके हैं। एसडीओ तैमूर के ऑफिस के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं। भोंग नहर से हमें पानी का पूरा हिस्सा न मिलने की वजह से हमारी जमीनें बंजर हो चुकी हैं। हमारे हिस्से का पानी महकमा अनहार की मिली बगैर से मकामी बासर जमींदार इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने वजीर आला पंजाब चीफ इरिगेशन बावलपुर SE रहीम यार खान से मुतालबा किया है कि हमारी जमीनों के हिस्से का पानी दिया जाए ताकि हमारी जमीनें बंजर होने से बच सकें। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अली बलोच, सच न्यूज, भोंग शरीफ। चिन्योट के जनरल बस स्टैंड पर मुसाफिरों की सहूलियात के लिए बेहतरीन इंतजाम कर दिए गए हैं। अब्दुल रहमान कलियार रिपोर्ट करेंगे। चिन्योट के जनरल बस स्टैंड से दीगर शहरों में सफर करने वाले मुसाफिरों की सहूलियात में इजाफा कर दिया गया। जनरल बस स्टैंड में मुसाफिरों की सहूलत के लिए बाथरूम और मुसाफिर खाना बना दिए गए, जिनका इफ्तिताह मारूफ बिजनेसमैन चौधरी मसूद इकबाल ने किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर सैयद मासूद नौमान और चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी मौजूद थे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर चिन्योट का कहना था कि हमने ये किया कि हमने सिविल सोसाइटी को जो है वो यहाँ से हमारे जो मतलब यहाँ पे अच्छे वेल एस्टेब्लिश बिजनेसमैन हैं, लोग हैं, उनको भी हमने इसमें इन्वॉल्व किया। कुछ हमारी जो MC है उसने काम किया, मुसाफिर खाने की तज़ीन और आयश की। फिर हमने सिविल सोसाइटी को जो हमारे यहाँ पे इकबाल राइस मिल हैं उनको हमने इन्वॉल्व करके यहाँ पे जो है वो बाकायदा नए वॉशरूम ब्लॉक जो है वो बनवाया। मारूफ बिजनेसमैन चौधरी मसूद इकबाल का कहना था कि चिन्योट इंतजामिया की ख्वाहिश पर हमने मुसाफिरों की सहूलत के लिए बाथरूम्स और मुसाफिर खाना तमीर करवा कर दिया है, जिससे मुसाफिरों की सहूलियात में इजाफा होगा। कैमरामैन अहमद रजा के साथ अब्दुर्रहमान कलियार, बैरो चीफ, सच न्यूज, चिन्योट। पारा चनार में किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए फर्जी मशकों का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं जावेद बंगश। पाराचनार में किसी भी हंगामी सूरत हाल से बर वक्त निपटने के लिए पाकिस्तान हिलाल रहमान ने रेस्क्यू 11-22 और सिविल डिफेंस के साथ मुश्तरका मशक़ का इनेकाद किया, जिसमें हंगामी सूरत हाल व कुदरती आफात के दौरान तमाम इमदादी इदारों की जानिब से की जाने वाली मुश्तरका इमदादी कार्रवाइयों के लिए बाहमी ताउन के साथ हिस्सा लेना है, ताकि कम वक्त में जल्द अज जल्द इमदादी कार्रवाइयों को सर अंजाम दिया जा सके। आज का जो ये सिमुलेशन एक्सरसाइज था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रेस्क्यू 11-22, सिविल डिफेंस, हिलाल अहमर पाकिस्तान, ये सब मिलकर खुदा न ख्वास्ता अगर डिस्ट्रिक्ट में कोई डिजास्टर आ जाता है तो वो किस तरह रिस्पांस करेंगे। मशकों के दौरान हंगामी हालात में जख्मियों को मौका पर जरूरी तिबी इमदाद अस्पताल मुंतकिल करने और बुलंद इमारत से शहरियों को बहिफाजत निकाल कर महफूज मकाम पर मुंतकिल करने की अमली मशक़ की गई। कुदरती आफात के दौरान जितनी भी इमदादी कार्रवाई इदारे हैं उनके दरमियान बाहमी ताल्लुकात पैदा करने के लिए इस तरह की ट्रेनिंग बड़ी मुफीद साबित होते हैं। जावेद बंगा, सच न्यूज, पाराचीनार। सवात तहसील ब्रैकुट में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे इकबाल खान। बरीकोट पुलिस की कार्रवाई ताना शमोज़े की हुदूद में 27 मई को होने वाली बड़ी चोरी के मुलजिमान को SHO शहनशाह खान और उनकी टीम ने जदीद साइंसी जराए बरोकार लाकर गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से चोरी शुदा 27 मन गंदम और 50,000 रुपए नकद, वक़वा में जेर इस्तेमाल सिम, मोबाइल, पिस्टल भी बरामद करके मुलजिमान को हवालात में बंद कर दिया। इसी सिलसिले में SDPO सर्कल बरीकोट साजिद मुमताज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया, 27 मई को वक़ुआ हुआ है मुसम्मी मोहम्मद जलाल, उम्र 69-70 साल, महल्ला सिरई, अबूहा, बरीकोट। उन्होंने थाने में आकर रिपोर्ट की है कि कुछ लोगों ने मुझसे ज़बरदस्ती मेरे सर पर पिस्टल रख के मुझे पकड़ के तो मुझसे ज़बरदस्ती 50,000 रुपया छीन लिया। उनकी उस रिपोर्ट पे मुकदमा दर्ज रजिस्टर हुआ और हमारी टीम ने हमारे SHO शमोज़ी और तफ्तीशी अफसर हमारे उमर वहाब साहब और हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट खलील भाई और उनकी टीम, इन सब ने मेहनत की। चूँकि इस मुकदमे में मोबाइल भी छीना गया था तो उस मोबाइल के ऊपर हमने काम किया और हमारा ये जो केस है ये ट्रेस हुआ और तमाम मुल्ज़िमान समेत रिकवरी के गिरफ्तार हो गए और जो माल मसरूका था वो भी बरामद हो चुका है। SDPO साजिद मुमताज का कहना था कि कोई भी मुल्जिम कानून से बलातर नहीं, सवात पुलिस पेशावराना महारत रखते हैं। उन्होंने आवाम से अपील करते हुए कहा कि अपने इर्द गिर्द जराइम पेशा अपराध की निशानदेही करें ताकि हमारा मुआशरा जराइम से पाक हो सके। इकबाल खान, सच न्यूज, बरीकोट, सवात।
DHQ अस्पताल बकर में कोरोना वार्ड में ड्यूटी देने वाले डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं नासिर अब्बास बलोच। बकर में कोरोना वायरस की तीसरी लहर में 33 से 3% तक के कामयाब सफर पर DHQ बकर में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब कोरोना वार्ड्स में ड्यूटी देने वाले डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के एजाज में मुनकिद की गई, जिसके मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर बकर सैयद मूसा रजा थे। तकरीब में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को खसूसी अवार्ड्स और तारीफी सर्टिफिकेट दिए गए। डिप्टी कमिश्नर बकर सैयद मूसा रजा ने इंचार्ज कोरोना वार्ड डॉक्टर कमर रजा और इनकी टीम को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि पंजाब भर में मुस्बत केसेस की सबसे ज्यादा शरह बकर में रही, मगर हमारे डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ कोरोना की तीसरी लहर का जवामर्दी से मुकाबला किया। सेकेंड वेव में हमारा केस लोड जो है वो 39 तक भी गया है। आई रिकॉल कि मैंने जब टीम के साथ मीटिंग की और मैंने कहा जी अब आप बताएं, आपके पास तो 15 बेड इसका एक्टिव है, तो अब आप क्या करेंगे। और मैं यकीन दिलाता हूँ आपको इस बात पे कि दे वर सो कॉन्फिडेंट, इतने जोश था और वो जिसे कहते हैं कि बलबला था कि हमने खिदमत करनी है और पत्थर के लोगों को से बचाना है। तो कि नहीं सर, वी कैन एक्सटेंड इट अप टू 100 बेड। सो फर्स्ट फेज में वी कैन गो। डिप्टी कमिश्नर बकर ने मजीद कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में डॉक्टरों, नर्सों और हरावल दस्ते का किरदार अदा करने वाले अमले की अनथक मेहनत से हमने कोरोना के खिलाफ कामयाबी हासिल की और अल्लाह के करम से आज बकर कोरोना मुस्बत केसेस में 33 से 3% पर आ गया है। इस कामयाबी पर डॉक्टर साहिबान और महकमा सेहत को खराज तहसीन पेश करता हूँ। कैमरामैन समीउल्लाह शाकरी के साथ नासिर अब्बास बलोच, सच टीवी, बकर। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए चकवाल के शहरियों ने स्विमिंग पूल्स का रुख कर लिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं राजा साकिब। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही बच्चों और नौजवानों ने स्विमिंग पूल का रुख कर लिया और गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए बड़ों के साथ बच्चे भी नहाने के लिए स्विमिंग पूल पहुंच गए और स्विमिंग पूल में नहाकर लुत्फ अंदोज हुए। तो इसलिए गर्मी की शिद्दत काफी 2 दिन से काफी बढ़ चुकी है, 43-44 आई थिंक है। तो इसलिए यूनिवर्सिटी में कोई हर चीज तप रही है, पानी तक इतना गर्म है। तो हमारा दिल था कि थोड़ा सा तफरी हो जाए, मतलब ठंडक थोड़ी सी जिस्म को पहुंचे। जैसे कि जानते हैं कि गर्मी की शिद्दत बढ़ी है और जिलाई तौर पर इस तरह कोई सरकारी स्विमिंग पूल नहीं है, तो गर्मी की वजह से और लोड शेडिंग काफी ज्यादा होने की वजह से हम यहाँ पे लुत्फ अंदोज होने आए हैं और हम अपने फ्रेंड्स के साथ आए हैं और हमने यहाँ पे आके बहुत एंजॉय किया है। अपने आए हैं और काम करने के लिए आए हैं गर्मी को अपनी, क्योंकि यहाँ पे लोड शेडिंग भी बहुत हो रही है 2 दिन से और गर्मी आपको पता है, इसकी वजह से हम यहाँ पे काम करने आए हैं और एंजॉय कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ। स्विमिंग पूल के ठंडे पानी से नहाकर गर्मी की तपिश को कम किया जा सकता है। शहरियों का कहना है कि गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए स्विमिंग पूल एक बेहतरीन जरिया है। कैमरामैन रजत तनवीर हैदर के साथ रजत साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, चकवाल। बूरेवाला में गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही एयर कूलर्स की मांग में इजाफा हो गया, मगर कीमतों में इजाफे के बायस खरीदार परेशान दिखाई दे रहे हैं। मोहम्मद करीम सैफी की रिपोर्ट। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही बुरेवाला में एयर कूलर की दुकानें सज गई। जगह जगह एयर कूलर की दुकानों में दर्जनों एयर कूलर पड़े हैं, लेकिन खरीदार बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। इस हवाला से जब हमारी खरीदार से बात हुई तो उनका कहना था कि महंगाई बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से एयर कूलर की खरीद गरीब आदमी की पहुंच से बाहर है। एयर कूलर खरीदने के लिए आए हैं। एयर कूलर के रेट बहुत बढ़े हुए हैं, छतर बहुत महंगी है। एयर कूलर आसमानों से बात कर रहे हैं। इंसान 2 वक्त की रोटी खाएगा या एयर कूलर खरीदेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दुकानदारों का कहना है कि गुज़श्ता सालों की निस्बत लोहे की चादर की कीमत डबल हो गई है। इस साल महंगाई की वजह से गाहक बहुत कम है। 2018-19 का रेट तकरीबन 110 तो लग के 120 रुपए सी। 2020 और 21 का रेट हो गया 140 रुपए। इस वक्त मौजूदा रेट 2021 तकरीबन 260 रुपए तो लग के 270 रुपए तक के। लोगों की कुछ खरीद नहीं, अच्छी कूलर बना के बैठे हैं, लेकिन गाहक साढ़े को नहीं है। जिन्होंने को रेट दसी था वो रेट छोड़ के चुप कर चला जाए। शदीद गर्मी के मौसम में मुतवसत तबके को ठंडी हवा देने वाले एयर कूलर भी कमर तोड़ महंगाई की वजह से कुव्वत खरीद से बाहर हैं। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद करीम सैफी, सच न्यूज, बुरेवाला। गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही ठंडे मशरूबात की मांग में भी इजाफा हो गया। इस हवाले से देखिए राशिद हुसैन की रिपोर्ट। खानेवाल समेत गिरदो नवाह में सूरज ने अपना जलवा दिखाया तो गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया। गर्मी की शिद्दत को कम करने और जिस्म को फरहत बख्शने के लिए शहरियों ने सड़कों किनारे लगे सरदाई के स्टॉलों का रुख कर लिया। खालिस दूध, बादाम, काली मिर्च, चारों मगजियात समेत दीगर सेहत अफजा अशिया से बनी सरदाई इस्तेमाल करके शहरी गर्मी की शिद्दत को कम कर रहे हैं। ये गर्मी का मशरूब है, इसे पीना चाहिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। हम भी पीते हैं। इसमें बादाम,
یہ اچھی چیز ہے. ساری چیزیں جو ڈالتے ہیں وہ بہترین اچھی ہیں, صحت کے لیے بہت اچھی چیز ہے. گاؤں سے آتا ہوں یہ سامان لینے کے لیے. گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے, یہاں رک کر سردائی پیتے ہیں, سردائی سے گرمی دور ہوتی ہے. ماہرین صحت کہتے ہیں کہ شدید گرمی میں مشروبات کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیا جائے اور گرمی سے محفوظ رہا جائے. کینوی بھی ہے اور دیگر مشروبات ہیں جو کہ ہمارے گھر کے مشروبات ہیں, ان کو ہم زیادہ ترجیح دیں. سڑک کنارے فروخت ہونے والی سردائی ایک بہترین مشروب ہی نہیں بلکہ صحت افزا ٹانک بھی ہے جس کا استعمال جسم کو فرحت بخشتا ہے. گرم موسم میں سردائی جیسے ٹھنڈے مشروبات نہ صرف طبیعت کو تازگی بخشتے ہیں بلکہ صحت افزا بھی ہوتے ہیں. کیمرہ ٹیم راشد حسین, سچ نیوز خانیبال. عارف والا کے نواحی گاؤں میں گمشدہ بچے کی ہلاکت کا معاملہ, پولیس نے سراغ لگا لیا. بچہ ٹریکٹر کی زد میں آ کر جاں بحق ہوا تھا, ایسا کہنا ہے پولیس کا. ڈرائیور نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر بچے کی لاش چھپا دی تھی. پولیس نے ڈرائیور کو حراست میں لے لیا. بچے کی لاش برآمد کر لی گئی. 8 سالہ بچہ باغ میں آم توڑنے گیا تھا. آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے 11ویں عام انتخابات کا شیڈول جاری کر دیا گیا. 25 جولائی کو انتخابات منعقد ہوں گے. مظفر آباد میں چیف الیکشن کمشنر جسٹس ریٹائر عبدالرشید سلیریا اور ممبران الیکشن کمیشن نے پریس کانفرنس میں انتخابی شیڈول کا اعلان کیا. آزاد کشمیر کے 33, مہاجرین جموں و کشمیر کے 12 حلقوں میں انتخابات ہوں گے. گزشتہ انتخابات کی نسبت 4 انتخابی حلقوں کا اضافہ کیا گیا ہے. انتخابات کے سلسلے میں 21 جون تک کاغذات نامزدگی داخل کروائے جا سکیں گے. 22 جون کو کاغذات کی جانچ پڑتال کی جائے گی. 28 اور 29 جون تک اعتراضات داخل کروائے جا سکیں گے جبکہ 30 جون تک اپیلیں کی جا سکیں گی. 2 جولائی تک کاغذات کی واپسی ہوگی اور 3 جولائی کو امیدواروں کی فہرست آویزاں کی جائے گی. انتخابات میں 28,17,090 ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے. وزیر مملکت زرتاج گل کہتی ہیں 30 سال سے محروم علاقوں میں ترقیاتی کام کروا رہے ہیں. تبدیلی کے دور میں ان علاقوں میں بھی کام ہوا جن میں کبھی نہیں ہوا تھا. غازی خان میں ان جگہوں پہ کام کروا رہے ہیں جو ڈیرہ غازی خان کی تاریخ میں پہلے کبھی بھی یہاں پہ ایسے منصوبے نہیں دے گئے. چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں کہ کسی کی گلی خراب ہے, کسی کی سیوریج نہیں ہے, کسی کی پائپ نہیں ڈلے ہوئے, یا پھر سوئی گیس کا فکر آ رہا ہے, یا پھر 1994 کے بعد یہاں پہ کوئی نئی گیس پائپ لائن ڈلی نہیں ہے. سیاحت کے شعبے سے منسلک سٹیک ہولڈرز اور سٹاف کے لیے صوبے میں تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا جس میں سیاحوں کے لیے بہترین سفری سہولیات اور SOP سے متعلق تربیت دی گئی. عدنان شاہد کی رپورٹ. محکمہ سیاحت خیبر پختونخوا کے زیر انتظام کرونا وائرس وبا کے بعد سیاحتی مقامات کی بحالی اور سیاحت کے شعبوں کے ساتھ منسلک سٹیک ہولڈرز کی SOP سے متعلق مقامی ہوٹل میں تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا جس میں اب تک 500 سے زائد افراد کو تربیت دی جا چکی ہے. جی بہت کچھ سیکھا ہے آج کے ٹریننگ سے ہم نے, کیونکہ SOPs فالو نہیں کریں گے ہم لوگ تو پھر کورونا جیسا وبا بھی پھر آئے گا, پھر ہمیں بہت سے مسئلے ہو گئے. ڈسٹینس رہ کے مطلب ماسک پہنے یہ کرے تو اگر اسی طرح ہم لوگ کنٹینیو رکھیں گے تو ہم اپنا کیا مطلب عوام کا بھی خیال رکھ سکتے ہیں. تربیتی ورکشاپ میں بتایا گیا کہ اس سال کووڈ کی وجہ سے سیاحت بہت بری طرح متاثر ہوئی. اب تک کی رپورٹ کے مطابق 56,000 لوگ بے روزگار ہوئے. 56,000 اگر آپ لوگوں کی بات کریں تو اس کو آپ مانیٹری ٹرمز میں لے جائیں, اگر آپ منیمم ایوریج بھی لگائیں تو 20,000 سے ملٹیپلائی کر کے دیکھ لیں تو یہ 4 بلین روپیز کا لاس جو ہے وہ تو صرف ان 14 months آف کووڈ میں یہ لوگوں کو فائنینشلی ہوا. ایز فار ایز دیئر پاپولیشن از کنسرنڈ 7.1 پاپولیشن ریٹ ہے KPK میں. اٹ از میکسیمم ایور ان دا ورلڈ کہ 7 لوگ ایک گھر میں ہیں, کمانے والا ایک ہے, تو یہ ایک لاس ہو گیا 56,000 جابز کے جانے سے. ورکشاپ کے انعقاد کا مقصد کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے ساتھ ساتھ سیاحوں کو بہترین سفری سہولیات, صاف ستھرے ماحول کی فراہمی کو یقینی بنانے سمیت SOPs پر عمل درآمد اور دیگر حفاظتی اقدامات کرنا ہے. کیمرامین محمد حسن کے ساتھ عدنان شاہد, سچ ٹی وی, پشاور. علاقائی خبرنامہ سے فی الوقت اتنا ہے. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ sach.tv.pk. دیکھتے رہیے سچ نیوز.